stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Yeah. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah, every knee will bow. Some confess. जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की सुबह। आइए हम सभी मिलकर प्रभु के उपस्थिति में धन्यवाद के हृदय को लेकर हम प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे हम जहाँ कहीं पे भी है, और ये समय मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे। तैयार हो जाएं, मेरे साथ इस गीत को गाएं। Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do
इस बात की घोषणा करेंगे आप और हम सब मिलकर। I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind away? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old me, just when I met you. When you called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy. Chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. When you call my name and I went out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave.
ईशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। ईशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। ईशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। Thank you, Jesus. ईशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं मैं बस तू मिल जा बसी। तेरे वचनों से राहें मेरी, तेरी नाव पे रोशनी तेरी। ईशु मोरे मोहे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। ईशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। ईशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। तुझ में मिलती है मुझको पना। तुझ में मिलती है मुझको पना। आज की सुबह जैसे हम इस आराधना के समय में भी हैं, मैं और आप प्रार्थना करेंगे कि हम इस वक्त परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति को प्रभु के हम समझ पाएं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और ये उसका वादा है जिससे कोई भी झुटला नहीं सकता, इससे कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। इसीलिए आज की सुबह आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज की सुबह प्रभु जितने भी लोग प्रभु हम मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आए, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इनमें से हर कोई प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपकी मौजूदगी को, परमेश्वर आपके प्रेजेंस को जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह होने दें कि प्रभु जैसे हम इस गीत को गाएंगे भी यीशु मसीह, प्रभु हम आपके करीब हों, प्रभु आपके निकट हों, प्रभु आपको जान सकें, प्रभु आपको समझ सकें, प्रभु आपको स्पर्श कर सकें। और प्रभु होने दें कि प्रभु हमारा भरोसा यीशु मसीह आप ही हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस।
तेरी धड़कनों को सुन सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा। तेरे हाथों को थाम कर चल सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा। हो यीशु, प्यासा तेरी चाहत में मैं हूँ यीशु, मुझे भर दे। ओ यीशुए, हालेलुया, हालेलुया। प्यासा तेरी चाहत में मैं प्रभु पाऊं ना रात में तुझ बिन प्रभु। प्यासा तेरी चाहत में मैं प्रभु पाऊं ना रात में तुझ बिन प्रभु। तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा, इतना करीबो, इतना करीबा, 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 इतना करीब। हो रमाना खारे दे प्यासा तेरी चाहत में मैं प्रभु पाऊं ना रात में तुझ बिन प्रभु। तेरा नूर दिखा, इतना करीबा, इतना करीबा। तेरी धड़कनों को सुन सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा। तेरे हाथों को थाम कर चल सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा। ओ इतना करीबा, इतना करीबा। ओ इतना करीबा, 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 इतना
इतना करीब। ओ मेरे करीब हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि जब कभी भी प्रभु हम आपको पुकारें तो प्रभु हम आपको अपने करीब पाते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ऐसे पिता हैं कि जब कभी हम आपको पुकारें प्रभु आप दौड़े हुए प्रभु आप हमारी ओर चले आते हैं। प्रभु आज की सुबह प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, इस वक्त प्रभु आपकी मौजूदगी को, प्रभु आपकी उपस्थिति को प्रभु जान रहे हैं प्रभु। और प्रभु धन्यवाद हो उस भरोसे के लिए जो प्रभु आप लेकर आते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर भी क्यों नहीं जाऊं, प्रभु मैं जानता हूं कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। प्रभु आपकी लाठी, प्रभु आपकी ढाल, प्रभु यही मेरी सुरक्षा है परमेश्वर। Your rod and your staff they comfort me God। प्रभु यहीं पर प्रभु मेरा आराम है, प्रभु आपकी उपस्थिति में ही। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु होने दे कि आपकी उपस्थिति यीशु मसीह यूं ही हमारे संग बनी रहे। प्रभु आप हमसे बातें करें प्रभु, खास तौर से आज की सुबह यीशु मसीह प्रभु आप हमसे बातें करें प्रभु। हम आगे का पूरा समय यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमसे बातें करें प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु, जिससे हमारा जीना प्रभु, हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह मैं आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगता हूँ। सभी मिलकर कहें आमीन। आप हमारे साथ बने रहें। पास्टर भी कुछ ही देर में हम सभी के साथ होंगे और प्रभु के वचनों से आज की सुबह हम आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है और प्रियो उसके मन को समझना, उसकी योजनाओं को समझना ये हमारे और आपके बस में नहीं। हाँ, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि वो अपनी सारी मनसाओं को हम पर प्रकट करता है और वो चाहता है, वो बताता है कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। सो आइए इस समय आज हम निर्गमन की पुस्तक में से कुछ देखने वाले हैं और ऐसा कुछ जो हमारे इन समयों में हमारी बहुत सहायता कर सकता है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि समय बिल्कुल निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक है और वो समय भी बिल्कुल नजदीक आ रहा है जब हम अपने पिता परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं। प्रिय, उस परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, या ऐसा नहीं कि वो कहीं परमेश्वर बनकर बड़ी कुर्सी पर बैठ गया हो और हमें दासों के रूप में कह रहा हो। नहीं, उस परमेश्वर का प्रेम हम पर इस तरह से प्रकट हुआ कि उसने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाना चाहा। उत्पत्ति में हम देखते हैं, बाइबल इस बात को बताता है, उसकी स्वरूप और समानता में उसने हमें बनाया और ये चाहा कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में अपने आप में बदलते चले जाएं। जो कुछ वो है और जो कुछ उसका है उसमें वो हमें सहभागी करता है। प्रियो, कितना अद्भुत प्रेम है कि वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है और इसी कारण उसने इस पृथ्वी पर हम सबको रखा कि हम अपने आप में परिवर्तित होते जाएं, बदलते जाएं उसकी स्वरूप और उसकी समानता में। उसका धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थिति के लिए। पौलुस कहता है कि सारी बातों में
उसका धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि हर एक बात मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको कुछ सिखाती है और मुझे और आपको उस परमेश्वर की स्वरूप और उस परमेश्वर की समानता में बनाती है। आज यही हम देखने जा रहे हैं। जीवन की हर परिस्थिति हमें एक नया पाठ पढ़ा कर जाती है और उसमें हमें वो सिखाती है कि हम किस तरह से उस परमेश्वर की स्वरूप और उसकी समानता में बनते जाएं, ताकि हम और परमेश्वर एक हो जाएं। प्रियो, वो आ रहा है उन्हें लेने के लिए जो अपने आप में तैयार हैं। हम कुंवारियों के 10 कुंवारियों की बात को जानते हैं। 5 तैयार थीं, 5 तैयार नहीं थीं। 5 उसके साथ गईं और 5 रह गईं, जबकि सब कुंवारियां थीं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तैयारी ये बहुत जरूरी है और हर एक के जीवन में परिस्थितियां तैयारी के लिए आती हैं और इसीलिए कहा गया है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो। और इसीलिए याकूब की पत्री में कहा गया है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां आपके भीतर परमेश्वर के स्वभाव को बनाती जाती हैं, आपको उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाती जाती हैं और एक पाठ देकर जाती हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य होता है। किसी ने इस तरह से कहा है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, चढ़ाव और उतार ये जीवन का भाग है। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी हम तराइयों में होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि नहीं मैंने जीवन के सारे पाठों को पढ़ लिया है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि हां मैं पूरी तरह से परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हूं। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है मैं उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। कोई नहीं कह सकता। हमारे जीवन का हर मोड़ या हर परिस्थिति हमें एक नया अध्याय देकर जाती है। हर समस्या हमें कुछ न कुछ भविष्य के लिए सिखा के जाती है कि आने वाले भविष्य में हम किस तरह से जिएं। और ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और वो भलाई ये है कि हम इन परिस्थितियों के द्वारा लड़ना सीखते हैं और परमेश्वर की विजय में रहना सीखते हैं। इसलिए याकूब कहता है धन्यवाद दो। इसलिए पौल कहता है कि मैं उस परिवर्तन की ओर, अपने भीतर के परिवर्तन की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज का यह संदेश जो हम आपको देने वाले हैं उसको समझने के लिए मैं पहले कुछ बता देता हूं। वो ये है कि जहां भी मिस्र की बात है, ये मिस्र, ये संसार है जिसमें हम रह रहे हैं। इजरायली जो अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, उसके द्वारा हम अब्राहम के संतान प्रतिज्ञा के देश के वारिस हैं, जहां पर कि वो हमें ले जा रहा है। और प्रतिज्ञा का देश हमारा अनंत काल का जीवन है जो हमेशा परमेश्वर के संग रहेगा और जिसके लिए वो हमें इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा है। आप अगर निर्गमन की पुस्तक को और उनके छुटकारे को देखें तो आप अपने जीवन और इस पृथ्वी की बातों को देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने
उस समय हमारे छुटकारे की बात को कह दिया था। हम सब जानते हैं कि इस्राएली मिस्र में बंधुआई में थे, मिस्र के दासत्व में थे। फिरौन उनसे कठोर काम करवाता था, उनके द्वारा वो एक नए नगर को बसा रहा था और उसके लिए दिन रात उनसे मेहनत करवाता। और वो एक ऐसे परिस्थिति में थे जहां पर वो जीना भी नहीं चाहते थे और मरना भी नहीं चाहते थे। विकट परिस्थिति में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में रखा। यह इस बात को दिखाता है कि हम भी इस संसार में बहुत सारे सांसारिक बंधनों में हैं। हम भी परमेश्वर की उस विजय को नहीं देख पा रहे जो उसने हमें दी। हां, हम उसके नाम से हमने छुटकारा तो पा लिया है, परंतु उन विजयों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे जो उसने हमें दी। हमने उस पर विश्वास तो कर लिया है, पर मार्ग में आने वाली परिस्थितियां हमें निरुत्साहित कर देती हैं। इसका कारण यही कि हम जिस राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं उस तैयारी को इस जीवन में नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हम उस तैयारी को समझ पाएंगे कि हां, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है, प्रियो, समस्याओं को देखने का, उनके साथ लड़ने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। समस्या फिर समस्या नहीं लगेगी, लेकिन समस्या ऐसी होगी जिसमें हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में क्यों दी, मैं इससे क्या सीखूं। और जब वो मैं सीख जाऊंगा तो वो परिस्थिति और वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस्राएलियों को मिस्र से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया, अद्भुत चमत्कार और चिन्ह वहां पर किए, जबकि मिस्र और फिरौन ने उनके परमेश्वर की खिल्ली उड़ाई, लेकिन उसी परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उस मिस्र और फिरौन के सामने दिखाया। हम सब जानते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं। 9 ऐसी विपत्तियां उन पर पड़ी कि जिनके बाद वो फिरौन खुद कहने लगा कि वास्तव में तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और यह सत्य है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वही एक में एक परमेश्वर है जो जीवन देता है, जिसके पास जीवन है। आवश्यकता है कि इस जीवन को हम लें, अपने आप को तैयार करते हुए। और उन विपत्तियों के द्वारा उस देश और फिरौन के ऊपर परमेश्वर ने इस तरह का कार्य किया कि फिरौन ने उन्हें इस्राएलियों को निकलने के लिए कहा, इजाजत दी। और वो भी ऐसे ही निकलने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, अपने पड़ोसियों के पास जाओ। इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को कहा कि जाओ और उनसे
सोना चांदी हीरे मोती जो भी है वो ले लो। और वो गए और उनसे मांगा और उन्होंने दिया, क्योंकि वो ये सोचते थे कि किसी भी तरह ये यहां से निकल जाएं, ताकि जो हमारे जीवन में मुसीबतें हैं वो निकल जाएं। सारी धन संपत्ति लेकर इजरायली मिस्र से बाहर निकले। इन सारी विपत्तियों के बीच परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की दृष्टि रखी, उन पर करुणा की और उन्हें बचाया। जब मिस्र के पहलौठे मारे जा रहे थे, जिसके बाद परमेश्वर ने फसह के पर्व को मनाने की बात कही, उसमें कोई भी इस्राएली पहलौठा मारा नहीं गया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी सामर्थ्य से बचाया। परंतु परमेश्वर उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को ही पूरा करने के पीछे नहीं था। कौन सी प्रतिज्ञा? जो उसने अब्राहम को दी थी कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तुझ में से राष्ट्र और राजा उत्पन्न होंगे। सो परमेश्वर यही नहीं कि सिर्फ चलो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके पीछा छुड़ाओ, नहीं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा तो उनके जीवन में पूरा कर रहा था, परंतु उसके साथ उन प्रतिज्ञाओं में किस तरह से जिया जाए, उन प्रतिज्ञाओं का सामर्थ अपने जीवन में कैसे लिया जाए, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के हर पहलू में किस तरह से उपयोग में लाया जाए, परमेश्वर इस्राएलियों को यह सिखा रहा था। यह ऐसे महत्वपूर्ण पाठ परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था जिससे वो खुद अपने जीवन के हर पहलू में, अपने जीवन की हर परिस्थिति में, अपने जीवन की हर समस्या में एक विजयी जीवन जिए। एक विजय से बढ़कर जीवन परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। नए नियम में भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमें भी विजय से बढ़कर बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें भी विजय के उत्सवों में लिए चलना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाएं ही हमारे जीवन में पूरी नहीं करेगा, परंतु उन प्रतिज्ञाओं में किस ढंग से रहा जाए और जीवन के हर पहलू में उन प्रतिज्ञाओं को किस तरह से हम ले सकते हैं, यह सिखाता है, यह सिखा रहा है। आज भी वो कार्य जारी है। इसका अच्छा उदाहरण लाल समुद्र को हम देख सकते हैं। प्रियो, सबसे पहले हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर ने एक नए राष्ट्र की उत्पत्ति की। परमेश्वर ने हमें संसार से चुनकर एक नया व्यक्ति बनाया। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई, और उस नए व्यक्तित्व में ही परमेश्वर हमें चलाना चाह रहा है। जैसे उसने इस्राएलियों को चुना। अब्राहम अकेला एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया, और कुछ ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर ने लाई
कि याकूब और यूसुफ के समय में अकाल पड़ा। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और वो मिस्र में आ गया था, अकेला एक व्यक्ति। उनका पूर्वज अब्राहम अकेला एक व्यक्ति उर्स से निकाला गया। परमेश्वर एक बड़े राष्ट्र की उत्पत्ति करता है और बुलाता है कितने को? एक व्यक्ति को, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो एक व्यक्ति अपने उस परमेश्वर पर निर्भर रहा, अगर वो एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के संग रहा, तो वो एक राष्ट्र से भी बढ़कर है। याकूब अपने 66 परिवार के 66 लोगों के साथ, याद रखिए 66 लोग, 66 मिस्र में आया और उन्हें गोशेन की तराई में रहने दिया। क्यों? क्योंकि जो मिस्री थे वो चरवाहों से बैर रखते थे, उन्हें अच्छे नहीं देखते थे, इसलिए उन्हें अलग एक जगह पर रख दिया। और परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस जगह पे इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि खुद मिस्र डरने लगा और फिरौन डरने लगा, और इसीलिए तो उन्हें बंधुआई में डाला। और जब परमेश्वर ने मिस्र से उन इस्राएलियों को छुड़ाया, तो आप जानते हैं कितने लोग निकले? 6 लाख से ज्यादा लोग निकले। 6 लाख से ज्यादा लोग निकले। 66 को परमेश्वर ने 6 लाख में बना दिया, और अब एक देश वहां पर उत्पन्न हुआ। कहां बना यह देश? मिस्र में। परमेश्वर ने उस देश को कहां तैयार किया? मिस्र में। मैं और आप, जैसे मैंने कहा कि मिस्र ये संसार है, परमेश्वर मुझे और आपको भी उस प्रतिज्ञा यानी अनंत काल के जीवन में ले जाना चाह रहा है, लेकिन हमें तैयार इसी जगह, इसी पृथ्वी पर कर रहा है, और हमें तैयार होना है। इस पृथ्वी पर वो हमें तैयार कर रहा है। अब जब परमेश्वर ने उस पूरे इज़राइलियों को निकाला, तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, और अगुवाई कहां की? लाल समुद्र के पास। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसने उनसे कहा कि वो लाल समुद्र के किनारे अपने खेमे डालें। और क्या हुआ? परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और फिरौन अपनी सेना के साथ उन्हें वापस ले आने के लिए चलने लगा। सबसे पहली चीज हम सब जानते हैं, 11 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें 40 साल के रास्ते से ले जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उन इस्राएलियों को एक राष्ट्र, एक राजा, एक याजक के जैसा तैयार कर रहा था। आइए इस बात को हम निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 17 और 18 वचन में देखें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, यानी पलिस्तियों के
देश से अगर वो परमेश्वर इन इजरायलियों को लेके जाता तो कनान में वो 11 दिन में पहुंच जाते। वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्यों परमेश्वर शॉर्टकट से नहीं ले गया? क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था, परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता था कि वो जाने कि उस प्रतिज्ञा के देश में किस ढंग से रहा जाए और विजयी रहे। अब वो परमेश्वर जिसने इतने अद्भुत चमत्कार किए, क्या वो फलिस्तियों को नहीं खत्म कर सकता था? अब वो परमेश्वर जिसने इतने अद्भुत काम किए, क्या उनको फलिस्तियों के देश के बीच से शॉर्टकट नहीं लेके जा सकता था? जा सकता था, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। इसलिए जिस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो परमेश्वर उन इजरायलियों को यह सिखाना चाहता था कि उनके लिए भी कुछ असंभव ना हो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और उन्हें सिखाने के लिए परमेश्वर 40 साल के मार्ग अर्थात लाल समुद्र से होकर लेकर के आया। और अब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें फंसा दिया कि एक तरफ फिरौन की सेना और दूसरी तरफ लाल समुद्र, पीछे जाओ तो खाई, आगे जाओ तो खाई। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इस तरह की परिस्थितियों का सामना किया होगा या कर रहे होंगे। विकट परिस्थिति, असंभव परिस्थिति। क्यों परमेश्वर ने उनके जीवन में उस परिस्थिति को आने दिया? और वचन तो यह कहता है कि इसके पहले कि वो कुछ करता, परमेश्वर ने इस्राएलियों को पहले से बता दिया था कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और फिर फिरौन के मन को कठोर करूंगा और फिर वो तुम्हें लेने आएगा। और उसमें यह भी कहा था कि डरना जाना, घबराना मत, उसके बाद ना तो तुम फिरौन और ना उसकी सेना को देखोगे। जैसे परमेश्वर ने हम सब से प्रतिज्ञा की है, उसने हमसे स्पष्ट प्रतिज्ञा की है कि वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। लेकिन उसके साथ वो हमें सिखाना भी चाह रहा है। इजरायलियों को वो सिखाना चाहता था कि वो लड़ाई को देखकर डरे नहीं, पर लड़ने के लिए तत्पर रहें। अब ये लड़ाई लहू मांस की लड़ाई नहीं, उस समय वैसी ही थी, लेकिन अब हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो लहू और मांस की नहीं है, तलवार की नहीं है, वो है आत्मिक लड़ाई, दुष्ट की युक्तियों और शक्तियों से। सो परमेश्वर हमें लड़ना सिखाता है। एक जगह मुझे बात याद आ रही है कि दाऊद कहता है कि वो मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। और वही चीज परमेश्वर इजरायलियों के साथ कर रहा था कि हर परिस्थिति में वो उस विजय को ले, और उस विजय को लेने के लिए जिस चरित्र की जरूरत है, परमेश्वर वो चरित्र उनमें बनाने के लिए उन्हें 40 साल के लंबे रास्ते से ले जाता है। इसलिए कि जब भी जीवन में किसी तरह की परिस्थिति आए, हम डरे नहीं या घबरा कर पीछे ना हट जाएं,
या किसी कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के विश्वास से नीचे न कर दे या हटा ना दे। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को देता है कि हम तैयार हों। दूसरा कारण, परमेश्वर इस्राएलियों को एक राष्ट्र के रूप में बना रहा था। एक नया राष्ट्र, अपने खुद के लिए परमेश्वर एक नया राष्ट्र बना रहा था, जैसा उसने मुझे और आपको चुना। और उसका वचन कहता है कि अब पुरानी बातें बीत गईं, परंतु देखो सब नई हो गईं। और परमेश्वर ने हमें एक नया व्यक्ति बनाया है। और जबकि हमें उसने नया व्यक्ति बनाया है, वो उस नएपन में किस ढंग से जिया जाए, उस नएपन में किस ढंग से उन आशीषों को लिया जाए, सिखा रहा है। और वो ये भी चाहता है कि जब वो सिखाए या जब वो परिस्थितियां आए तो उन परिस्थितियों से डर के हम भाग ना जाएं। उन परिस्थितियों का हम डट कर सामना करें। आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने लाल समुद्र से उनको पार किया, आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उनसे स्पष्ट कहा था, डरे नहीं, घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरने लगे और घबराने लगे और वो कहने लगे कि हमें वापस मिस्र को भेज दो, यहां मरने से अच्छा। लेकिन प्रियो, क्या परमेश्वर ने उन्हें उस परिस्थिति में छोड़ा? नहीं। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा किया, जबकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। अगर परमेश्वर पर विश्वास किया होता तो फिरौन की सेना और उस लाल समुद्र को देखकर वो डरते नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते और परमेश्वर पर आश्रित होते, परमेश्वर पर निर्भर होते और कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें मिस्र से छुड़ाया, तू हमें इस लाल समुद्र से भी पार करेगा, तू लेकर के आया है और तू ही हमें बचाएगा। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत किया। तब भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया और लाल समुद्र को दो भागों में किया और वो सूखी भूमि से निकल गए। और जब फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आई, समुद्र में वो सब डूबकर मर गए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्या ये परिस्थिति हमारी आज है? और अगर ऐसी परिस्थिति आज है तो तैयार हो जाएं और सीखें कि किस तरह से हम अपनी विजय को अपने हाथ में लें। डरना, घबराना नहीं, सामना करना और सीखना कि किस तरह से विजय लें। परमेश्वर सिखाता है और जब वो सिखाता है तो वो दूर खड़ा नहीं रहता, वो आपकी हार को देखता नहीं रहता, लेकिन वो तो स्पष्ट आपके संग रहता है और कहता है कि तू सिर्फ अपने पांव को गर्दन पर रख, विजय तो मैंने ले ली है। और इसीलिए कहा है, शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें बना रहा है और वो अकेला खड़ा नहीं देख रहा, परंतु वो हमारे साथ साथ चल रहा है। और
सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे देख सकते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें पार लेकर के गया तो उस जंगल के रास्ते में, उस मरुस्थल के रास्ते में दिन में बादल बनकर की धूप उन्हें सताने ना पाए और रात में आग का खंभा बनकर उनके संग चला। सो जब परमेश्वर आपको सिखाता है तो वो दूर खड़ा रहकर आपको परिस्थिति में झोंक नहीं देता कि अब जो हो वो भरो और भुगतो, नहीं, वो खुद आपके साथ, हमारे साथ होता है और सिखाता है। सच्चाई तो ये है कि सिखाने के समय भी हमारे साथ रहते हुए वही लड़ता है। उसी ने लाल समुद्र को पार किया, उसी ने लाल समुद्र को दो भाग किया। इस्राएलियों ने क्या किया? कुछ नहीं। सिर्फ परमेश्वर यही चाहता था कि वो उस परिस्थिति में भी उस परमेश्वर पर निर्भर रहें, वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करें, वो उस परिस्थिति में भी उस परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आनंदित हों, क्योंकि जिसने उन्हें मिस्र से निकाला वही उन्हें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां पर वो चाहता है। और अगर वो उस जगह पर आपको ले जाना चाहता है जहां वो चाहता है, तो क्यों ना मैं और आप अपने पूरे जीवन को उस परमेश्वर पर निर्भर कर दें, उस पर भरोसा रखें। उसने मुझे और आपको शैतान के बंधन से निकाला, वो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाढ़ा गया और फिर से जीवित हुआ। उसने मुझे और आपको विजय दी है और वो कहता है कि मैं विजय के उत्सव में लिए चलूंगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें, हर परिस्थिति में परमेश्वर के संग चलना सीखें। याद रखिए, संग मतलब वो खुद हमारे संग चलता है। इस बात को आप निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 21 और 22 वचन में देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि वो और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। खुद परमेश्वर चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों से हटाया। उसने अपने आप को, जबकि वो सिखा रहा है, उसने आपको उनसे हटाया नहीं, वो उनके संग रहा। जैसे आज वो हमारे संग है। आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और 20 वचन को देखें तो उसमें लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, सबसे प्रमुख बात जो परमेश्वर कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जैसे वो आग और बादल का खंभा बनकर इस्राएलियों के संग चला, आज भी वो कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, डर मत क्योंकि मैं तेरे लिए लड़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और वचन 14 इस बात को स्पष्ट तौर पे कहता है कि लड़ाई परमेश्वर की है, मैं लड़ूंगा, परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ेगा। निकालिए निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और वचन 14, जहां पर आप उस वचन को पाते हैं। वचन स्पष्ट इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा।
वचन 14 अध्याय 14 वचन 14 कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? यहोवा। किसके लिए लड़ेगा? आपके लिए, तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए क्या करो तुम? इसलिए तुम चुपचाप रहो और उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो, उस पर निर्भर हो जाओ कि वही परमेश्वर है जिसने तुम्हें बनाया, वही परमेश्वर है जिसने तुम्हें आत्मा दी, वही परमेश्वर है जो तुम्हारी सुरक्षा है, वही परमेश्वर है जो तुम्हारे संग है, वही परमेश्वर है जो न तो तुम्हें कभी छोड़ेगा, वही परमेश्वर है जो न तो तुम्हें कभी त्यागेगा। और यदि तुम उस पर निर्भर हो तो जिस स्थान के लिए उसने तुम्हें चुना है वो उस स्थान में तुम्हें ले जाएगा, वो खुद लड़ेगा। कितने भाग्यशाली हैं मैं और आप, जहां परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमारे लिए लड़े, उसके लिए हमें अपने आप में तैयार होना होगा। इस्राएलियों की हर परिस्थिति और हर समस्या को अगर आप देखें तो उसमें परमेश्वर एक ही चीज सिखाना चाहता था, और वो चीज थी कि हर परिस्थिति में हम उस परमेश्वर पर निर्भर रहें। हर परिस्थिति में हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर परिस्थिति में हम उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बने रहें और उस पर विश्वास करें और उस विश्वास के अनुरूप अपने जीवन में जिएं। और तब परमेश्वर कहता है वचन 14 और अध्याय 14 निर्गमन के कि परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े? परमेश्वर हमारे लिए लड़े। आवश्यकता है कि हर परिस्थिति में आप मत लड़े। लड़ने का काम आपका बाप करेगा, आपका पिता करेगा, आपका परमेश्वर करेगा। आप तो सिर्फ सीखें उस पर निर्भर रहना। आप तो सीखें उस पर विश्वास में बने रहना। आप सीखें उस परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कि वो तुम्हें धोखा दे। वो तुम्हें सिखा रहा है, और जब आप सीखेंगे आप विजय में जिएंगे। जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे तो वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 16 से 19 वचन में, जो विश्वास करे, इसका अर्थ जो उसके पीछे चलते, भरोसा रखते और उस पर निर्भर होते हैं, वही विश्वासी हैं। विश्वास करने वाले, जो विश्वास करे, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है वो विश्वासी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, कई बार हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर नहीं होता। परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। नो, पहले परमेश्वर आपको सिखाता है कि कैसे लड़ा जाए। इसलिए वो कहता है कि वो आप ही
तुम्हारे लिए लड़ेगा। विश्वास, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास न करेगा, जो उस पर आश्रित न होगा, जो उस पर भरोसा नहीं रखेगा, जो मनुष्यों पर भरोसा रखेगा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, और वचन सत्य है, वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये मेरे वचन नहीं, परंतु ये वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं। जब वो स्वर्ग में उठाया जाने वाला था, उसने ये बातें उनसे कही, और वचन आगे कहता है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आज भी वो मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, मैं और आप सीखें। आज भी वो उस परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है कि मैं और आप उस विजय में चल सके। आवश्यकता है कि उस पर निर्भर 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 हो जाए, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, परिस्थिति को नहीं, उस परमेश्वर को देखें। लाल समुद्र को और फिरौन की सेना को नहीं, उस परमेश्वर को देखें जिसने आपको चुना है। आज की परिस्थिति में परमेश्वर इन दिनों में यही चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उस परमेश्वर पर निर्भर हों, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें कि अगर उसने हमें छुड़ाया है तो वही हमें उस जगह पे ले जाएगा जिस जगह के लिए उसने हमें चुना है, और उसके लिए वो खुद लड़ेगा और हमें विजय देगा। परमेश्वर आपके संग है, न तो वो कभी आपको छोड़ेगा, न वो कभी आपको त्यागेगा। वो खुद परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप भी उन परिस्थितियों में जो लाल समुद्र और फिरौन की सेना की परिस्थिति है, उसमें से वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। उसने आपसे इतना प्यार किया कि आपकी हार जो पाप के द्वारा है, आपकी मृत्यु जो पाप के द्वारा है, उसने अपने ऊपर ले ली और अपना पुनरुत्थान और अनंत काल का जीवन, उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो अनंत काल का जीवन उसने आपको दिया। अपनी वो विजय जो उसने कलवरी क्रूस पर ली, आपको दी। आपको एक नया मनुष्य बनाया, आपके अंदर एक नई आत्मा दी, इसलिए कि आप उस स्थान तक पहुंचे जिसके लिए उसने आपको चुना है, उस अनंत काल के जीवन के लिए। उस पर विश्वास करें, उसमें बने रहें। आप बीमार हो या आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इस पैंडेमिक परिस्थिति में परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस पर विश्वास में बने रहें, उसके संग रहें, उस पर भरोसा करें और अपने जीवन में विजय को देखें।
आमेन। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर ने अपनी जान इसलिए दी कि आप और मैं विजयी हो सकें। उसने क्रूस पर अपने प्राणों को इसलिए दिया कि मैं और आप लड़ना सीखें उन परिस्थितियों से जो शैतान के द्वारा लाई जाती हैं या परमेश्वर के द्वारा लाई जाती हैं। उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के नाम को विजयी ठहराएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। प्रियो, प्रभु आपको आशीषित करे। विजयी रहें। आप विजय से बढ़ करके हैं। परमेश्वर आपकी चंगाई है। परमेश्वर आपका पिता है जो न तो छोड़ेगा न त्यागेगा। वो खुद आपके लिए लड़ेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन। आइए प्यारों, देने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करेंगे। Living by faith, nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. आइए हम परमेश्वर की भेंट के लिए उसका धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके लोगों ने बड़े प्रेम से आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद देने के लिए चढ़ाई है। प्रभु परमेश्वर, इसे आप आशीष दें, ये बढ़ता चला जाए और हर एक की जरूरतें स्वर्ग से पूरी हो। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग के भंडार इन पर खुल जाए प्रभु, और स्वर्ग की भरपूरी इनमें से हर एक के जीवन में आ जाए। गरीबी के श्राप को हम प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं। कर्जे के श्राप को इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक कमी घटी को इनके जीवन से हम दूर करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इनकी जरूरतें बहुतायत से इन्हें दें। जिस प्रकार से आपने 5 रोटी से 5,000 लोगों को इतना खिलाया कि वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरे बच गए, प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में आशीष मिले। इन्हें स्वर्ग के भंडार खोलकर इतनी आशीष दें प्रभु कि इनके पास कभी आगे को किसी चीज की कमी ना हो। हर जरूरत के लिए इन सभी के पास भरपूरी से हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग से उतरी सच्ची रोटी जो आप हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे सब कुछ है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज वचनों के द्वारा, गाने और स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपने हमसे अपनी आराधना करा कर ली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का मन्ना हमें खिलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी भेंट लाकर हमने आपका आदर किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें प्रभु हुई हैं उन सारी बातों के लिए केवल हम आपकी बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और धन्यवाद देते हुए इस सभा को हम समाप्त करते हैं। लेकिन आपकी संगति, उपस्थिति जैसे इस समय हर एक के साथ है, आने वाले इस पूरे सप्ताह भर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हर एक को आशीष देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे अगले इतवार को ठीक 10:30 बजे। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you.